السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ فریال فاطمہ۔ قائم ٹی وی کی جانب سے پروگرام دین اور دنیا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ حاضرین محفل، آج ہم جس موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے وہ ایک بہت ہی خوبصورت موضوع ہے۔ جیسے کہ آج ہمارے دین اور دنیا کا یہ آخری پروگرام ہے، تو اس آخری پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے اس ہستی کے حوالے سے کہ جو ہماری نصرت کا باعث ہے، وہ ہستی جو امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام ہے، ہمارے آخری امام جو ہماری آخری حجت ہیں۔ ہم آج ان کے حوالے سے اور ان کی نصرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمیں ان کے لیے خود کو اس دنیا میں، یہ جو پروگرام ہے دین اور دنیا، وہ ہمارا دین ہے، اور ہمیں اس دنیا میں خود کو امام مہدی علیہ السلام کے لیے سنوارنا ہے، ان کی نصرت کے لیے سنوارنا ہے۔ تو کیا ہم ان کی آنے کے لیے، ان کے ظہور کے لیے تیار ہیں؟ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے اپنی مہمان محترمہ عروس فاطمہ رضوی سے۔ کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم گفتگو کریں گے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو آپ بتائیے کہ ہم کس طریقے سے ان کی وہ ہماری آخری حجت ہے، ہم ان کے حضور کے لیے کس طریقے سے خود کو سنوار سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ونبینا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے میری جانب سے آپ کو اور تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بہت زیادہ سلام عرض ہے۔ وعلیکم السلام۔ اور جس طرح کے آج کا موضوع امام وقت علیہ السلام، وہ امام کے جو ہمارے وقت کے امام ہیں، امام عصر ہیں، وہ امام کے جو شریک قرآن بھی ہیں، وہ امام کے جو امام زمانہ بھی ہیں، وہ امام کے جو یبنہ زہرا بھی ہیں، وہ امام کے جو بقیت اللہ بھی ہیں۔ وہ امام ہمارا سلام ہو اس امام کے اوپر کہ جو پردہ غیبت میں موجود ہے، لیکن پردہ غیبت سے بھی ہدایت جاری و ساری ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ امام کہ جس کی معرفت ہمارے لیے واجب قرار دی گئی ہے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو کوئی اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کرے اور اس دنیا سے چلا جائے، گویا وہ جاہل کی موت گیا۔ لہٰذا ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اگر وہ نہیں چاہتا کہ وہ جاہل کی موت اس دنیا سے جائے، جاہلیت کی موت سے اس دنیا سے جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کرے۔ ہم ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں ہمارا وقت کا امام پردہ غیبت میں موجود ہے، اور اس زمانے سے یہ زمانہ بہت مختلف ہے۔ جس طرح کہ جب ائمہ معصومین علیہ السلام اپنی ظاہری صورت میں اس دنیا میں ہوا کرتے تھے اور لوگ ان کے پیروکار ہوتے تھے اور ان کی معرفت کو حاصل کرتے تھے، یہ زمانہ اس سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اب ہمارے وقت کے امام ہمارے سامنے موجود نہیں، بے شک وہ حاضر و ناظر ہیں، ان کے لطف و کرم کی نگاہ ہر وقت ہمارے اوپر ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس وقت بھی ان کی نگاہ خاص انشاءاللہ کہ ہمارے اوپر ہوگی۔ لیکن وہ امام علیہ السلام کہ جو پردہ غیبت میں موجود ہے، بہت مختلف ہے کہ ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں کہ جہاں امام پردہ غیبت میں۔ اب اس زمانے میں اس زمانے کے لوگوں سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے۔ کس معنوں میں آپ پوچھیں؟ اس طرح کہ جب امام اپنی ظاہری صورت میں لوگوں کے درمیان موجود ہوتے تھے تو لوگ امام کو دیکھ کے اندازہ لگاتے تھے کہ جس کا امام ایسا ہو تو اس کے چاہنے والے کیسے ہوں گے۔ لیکن اب جب کہ امام پردہ غیبت میں موجود ہیں تو اب میری اور آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی، کیونکہ آج لوگ مجھے اور آپ کو دیکھ کے اندازہ لگائیں گے کہ جس کے چاہنے والے ایسے ہیں تو جن کے ماننے والے ایسے ہیں تو اس کا امام کیسا ہوگا۔ لہٰذا توجہ دینی ہے عزیز ناظرین، بہت زیادہ توجہ دینی ہے آج مجھے اور آپ کو کہ امام کی معرفت کو کیسے حاصل کیا جائے۔ دیکھیں امام کی معرفت کی راہیں بہت زیادہ ہیں، ہمیں کرنا پڑے گا اس سلسلے میں۔ کام کیا کریں؟ اپنے ہر عمل کو، جس طرح کہ ہم جو کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ خدا اس سے ناراض تو نہیں ہوگا، ناراحت تو نہیں ہوگا، اسی طرح ہم ایک میزان اور بنا لیں اپنی زندگی میں، اپنے ہر عمل کو اس میزان میں رکھیں اور یہ سوچیں کہ یہ ہمارا جو عمل ہے، یہ جو ہمارا کام ہے یا جس راہ پہ ہم چل رہے ہیں، اس سے ہمارا امام راضی ہوگا
नाराहत तो नहीं होगा। वो इमाम के जो पर्दे गैबत में तकरीबन 1200 सालों, वो इमाम जो पर्दे गैबत में है, हफ्ते में 2 मरतबा हमारा नामा अमाल उस इमाम के सामने पेश होता है। वो इमाम के जो हम भी दुआ कर रहे हैं, लेकिन वो ख़ुद अपने ज़हूर के हमसे ज़्यादा मुंतज़िर हैं, क्योंकि इमाम को इंतकाम करबला लेना है, बिल्कुल, क्योंकि इमाम को इंतकाम जनाब सैयदा लेना है। बेशक, तो लिहाजा बेशक। मैं और आप क्या करें कि हम अपने आप को इमाम के करीब करें, इमाम के नज़दीक करें। अब करना क्या है, वो कौन सी राहें कि जिन पे चल के हम अपने आप को इमाम से नज़दीक कर सकते हैं और इंशाअल्लाह के मार्फत को हासिल कर सकते हैं। देखिए, दावा मोहब्बत काफ़ी नहीं है। मैं ये कह दूं कि इमाम मेरे दिल के अंदर मौजूद है, मैं इमाम को सलाम कर लेती हूँ सुबह उठ के, मैं इमाम की दुआए सलामती पढ़ लेती हूँ, ये चीज़ें काफ़ी नहीं हैं। ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन ये चीज़ें मुकम्मल नहीं हैं। मेरा हर अमल में एक मीज़ान बना लूँ और मैं ये सोचूं कि मेरा इमाम इससे राज़ी होगा या नाराज़ होगा। हर अमल को जिस तरह हम खुदा को ये सोचते हैं कि खुदा राज़ी रहे, इस तरह इमाम भी हमसे राज़ी रहे इंशाअल्लाह। लिहाजा हर अमल को उस पैमाने पे रखिए, उस मीज़ान पे रखिए। इमाम ऐसा ना हो कि इमाम को हमारी वजह से गिरिया करना पड़े। जब हमारा नामा अमाल उनके सामने पेश हो तो इंशाअल्लाह कि वो नामा अमाल हमारा इमाम के खुशनुदी का बाइस बने, ना कि इमाम के गिरिये का बाइस बने। अब मार्फत की राहों को कैसे हासिल करें? मार्फत की राहें जब हासिल होंगी जब इमाम से राब्ते में होंगे। इमाम से राब्ता कैसे बहाल करें? इमाम से राब्ता ऐसे बहाल करें, हर वो अमल करें कि जो इमाम को पसंद है, हर वो अमल करें कि जो हमें उनके किरदार के नज़दीक कर दे। अब हो सकता है किसी के जहन में यह आए कि इमाम तो सामने ही नहीं, हमें क्या पता कि इमाम किस अमल को पसंद करते हैं। तो देखिए, इस मरहले को 1400 साल पहले आखिरी नबी ने हल कर दिया था हमारे इस मसले को। उन्होंने फरमाया था हमारा अव्वल भी मोहम्मद है, हमारा औसत भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है, हम कुल के कुल मोहम्मद है। लिहाजा पहले मोहम्मद की सीरत को समझ लीजिए, आखिरी मोहम्मद की सीरत समझ में आ जाएगी। आप सैयदुश-शुहदा की सीरत समझ लीजिए, इमाम ज़माना की सीरत समझ में आ जाएगी। आप अमीर अल मोमिनीन की सीरत को जानिए, आपको आखिरी इमाम की सीरत पसंद आ जाएगी। देखिए, पसंद क्या था इन हस्तियों को? खुदा की इबादत पसंद थी। लिहाजा अपने आप को खुदा की इबादत के नज़दीक लाइए, इमाम से राब्ता कीजिए। इन लोगों को क्या पसंद? कुरान से इश्क है अहले बैत को, लिहाजा कुरान की तिलावत करें, हदिया कर दें इमाम ज़माना को। आप देखिए कि अगर आप किसी आम इंसान को भी हदिया देते हैं तो पलट के उसकी कोशिश होती है कि वो भी कुछ अता करे, और जब वो वक्त के इमाम देंगे तो अपनी हैसियत के हिसाब से देंगे। लिहाजा कोशिश करें आपके दिन में कोई ऐसा अमल, कोई कुरान की सूरा, कोई नेक अमल, कोई ज़ियारत, कोई ऐसी नेकी, कोई इस तरह का अमल इमाम को हदिया करें। आप देखिए कि वहाँ से जवाब ज़रूर आएगा, ये राब्ते बहाल करने के। इसके अलावा दुआए सलामती इमाम ज़माना कि जो हम पढ़ा करते हैं, इसको 5 वक्त की वाजिब नमाज़ों के कम से कम एक कुनूत में आप ज़रूर इसको पढ़िए। आप देखिए इमाम से राब्ता बहाल होगा। उसके अलावा जो ज़ियारतें दी हुई हैं, जैसे ज़ियारत आले यासीन है, दुआए नुदबा कि जिसके लिए बहुत कहा जाता है, जुम्मे का रोज़ क्योंकि इमाम ज़माना से मंसूब है, तो जुम्मे को दुआए नुदबा आप उसकी तिलावत कीजिए, आप उसको पढ़िए, उसमें वो अल्फाज मौजूद हैं। और इस वक्त मुझे वो 2 जुमले दुआए नुदबा के याद आ रहे हैं और मेरी दिल जो है वो बहुत ज़्यादा गमज़दा भी हो रहा है जुमलों के साथ, कि जहाँ पर वो जुमला मौजूद है कि कितना गिरा है मेरे ऊपर कि मुझे सबकी आवाज़ तो सुनाई दे लेकिन मेरे वक्त के इमाम की आवाज़ मुझे सुनाई ना दे। कितना गिरा है मेरी आंखों के ऊपर कि मुझे तमाम दुनिया में सब तो दिखाई दे लेकिन मुझे मेरे वक्त के इमाम दिखाई ना दे। लिहाजा इस हसरत को, इस गमी को अपने कल्ब के अंदर महसूस कीजिए। आज कितनी अजीम नेमत है कि जो पर्दा गैबत में मौजूद है, कितनी अजीम नेमत है कि जो हमारी निगाहों के दरमियान नहीं है। लिहाजा हम नेक अमाल के ज़रिए, तो इबादत खुदा के ज़रिए, नफ्स की पाकीज़गी के ज़रिए इमाम से इंशाअल्लाह के राब्ते को बहाल करें, और इमाम यकीनन जवाब देते हैं। हम इमाम को याद ना रखें लेकिन इमाम ज़रूर याद रखते हैं। शेख मुफीद के नाम एक ख़त इमाम ने लिखा। उस ख़त में क्या लिखा था इमाम ने? कि हमारे शियों से कह दें कि हम हरगिज़ भी उनसे दूर नहीं हैं, हमारी निगाह हर वक्त उनके ऊपर मौजूद है। अगर हमारी निगाह लम्हे भर के लिए भी उनके ऊपर से हट जाए तो दुश्मन उन्हें नीस्तो नाबूद कर दे। आज आप देखिए दुश्मन कितना मिटाने की कोशिश करता है, कितना दबाने की कोशिश करता है, लेकिन क्या ताकत है कि हमारे अंदर ये तवानाई मौजूद है कि
हमारा वक्त का इमाम, हमारा वारिस हमारे साथ मौजूद है, दुश्मन मिटाने की कोशिश करता है। आज हम किससे मदद मांगते हैं? वक्त के इमाम मदद कीजिए, और इमाम बेशक मदद करते हैं। इमाम फरमाने कि अगर हम ना होते तो दुश्मन तुम्हें नीस्तो नाबूद कर देता। आज अगर हम अज़ादारी बर्पा कर रहे हैं, आज अगर हम सीरत आइमा पे गुफ्तगू कर रहे हैं, आज अगर हम कुरान की बात कर रहे हैं, तो ये सब उनकी तरफ से अता है, तौफीक है कि जो हमें मिल रही। लिहाजा हम इस तौफीक को जारी रखें और उस इमाम की मार्फत को हासिल करें, नेक अमाल को अंजाम दें। जिस तरह मैंने कहा कि सीरत आइमा हमारे सामने मौजूद है, और उस इमाम के इनकलाब की राह को हम वार करें। देखिए, बताया गया कि बाज़ मर्तबा हमारे गुनाह, यानी उनके चाहने वालों के, उनके शियों के गुनाह इमाम के रास्ते में, यानी इमाम के ज़हूर के रास्ते में ताख़ीर का बाइस बनता। इमाम का ज़हूर शायद हमारी गुनाहों की वजह से और दूर होता जा रहा है। लिहाजा हम अपने आप को गुनाहों से बचा के नेकियों की तरफ लेकर आएँ, और इंशाअल्लाह के इमाम के ज़हूर की राह को हम वार करें। देखिए, इमाम का आ जाना और मौजे से आके इनकलाब बर्पा कर देना, ये कोई ऐसी बात नहीं। ज़ाहिर है वो मौजिज़नुमा है, ज़ाहिर है उनके पास इलाही क़ुव्वत है, वो चाहें तो ये सब कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे असहाब की ज़रूरत है कि जो एक इनकलाब बर्पा कर सके। चाहते तो इमाम हुसैन भी करबला में चाहते तो प्यासे ना रहते, पानी को इशारा करते, पानी उनके पास आ जाता। एक हुक्म देते तो क्या ज़मीन ना पलट जाती करबला की? क्या फरिश्तों की फ़ौज नहीं आई कि हम आपकी मदद करें? क्या अम्बिया का लश्कर नहीं आया कि हम आपकी मदद करें? क्या जिन्नात की फ़ौज नहीं आई कि हम इमाम हुसैन की मदद करें? लेकिन इमाम ने इनकार किया। बिल्कुल इसी तरह इमाम जो वक्त के इमाम अलैहिस्सलाम है, वो भी चाहे मौजज़े से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वैसे ही असहाब की ज़रूरत है जैसे करबला वाले असहाब थे, कि जब करबला के मैदान में आए तो ना उन्हें जान की परवाह थी, ना उन्हें माल की परवाह थी। आज मेरे और आपकी ज़िम्मेदारी, हर एक की ज़िम्मेदारी ये है कि हम अपने हर अमल को ना सिर्फ इमाम से मंसूब करें, बल्कि इमाम के ज़हूर की तैयारी बिल्कुल इस तरह करें। ये नहीं सोचे फ़लाँ निशानी आएगी तो इमाम का ज़हूर होगा, फ़लाँ निशानी आएगी तो इमाम का ज़हूर होगा। मैं ये समझूँ आज अभी किसी भी वक्त शायद इंशाअल्लाह कि इमाम का ज़हूर हो जाए। मुझे हर वक्त अपने आप को तैयार रखना है, और ये भी ज़हनों में रखें कि जब तक इमाम का ज़हूर नहीं हो रहा, अमाल के दरवाज़े खुले हैं, हिदायत के दरवाज़े खुले। जब इमाम का ज़हूर हो जाएगा, उसके बाद अगर मैं अपने आप को सही करूं तो फिर वो दरवाज़े बंद हो जाएंगे। लिहाजा तैयारी आज से, और इंशाअल्लाह के दुआओं में अव्वलन दुआ इमाम के ज़हूर की दुआ। सुभान अल्लाह। बेशक आज हमारी गुफ्तगू थी इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से, कि हमें ख़ुद को तैयार करना है उनकी नुसरत के लिए। वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमें अपने किरदार को तैयार करना है उनके लिए। जब हम अपने घर से अपने अजीज़ों को रवाना करते हैं, अपने बाप को, अपने भाइयों को रवाना करते हैं, तो हम ये कह के रवाना करते हैं जाओ इमाम ज़माना की ज़मानत में दिया। हमें लेकिन नहीं पता कि हमारा इमाम किन हालों में है, वो कैसे हैं। तो बेशक हमें उनकी सलामती की दुआ करनी चाहिए। मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ कायम टीवी की जानिब से मोहतरमा उरूस फ़ातिमा रिज़वी की, कि उन्होंने हर मरहले पे हमारे साथ बेहतरीन ताउन किया और हमारे साथ बेहतरीन गुफ्तगू की। हमें बहुत सी चीज़ों का हवाला दिया कि जिसके हवाले से हमारा माइंड क्लियर हुआ कि दीन और दुनिया में किन चीज़ों में इख्तलाफ करना है, किन चीज़ों को अपनाना है और किन चीज़ों को छोड़ना है। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आज हमारा मौजू, हम अपने मौजू को यहीं पर इख्तिताम करते हैं, इख्तिताम पज़ीर करते हैं। इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए कायम टीवी। खुदा हाफ़िज़।